Good morning, student. Today we will discuss again on economics chapter first, development. In this chapter we will cover this topics development, different aspects of development. First is development. Development means progress or growth. Every person wants development. Next topic is here different aspects of development. It means different person have different development goal. हर person के development goal different होते हैं. Here we take the example of boy and girl. The next topic is what may be development, not may be development of others. एक person का development goal दूसरे person का development goal नहीं हो सकता है. यहाँ पर examples हम लेंगे industries और dams का. The next topic is for development people look at mix of goals. Development के लिए लोग जो हैं वो mix of goals को prefer करते हैं. Next topic income and other goals. यहाँ इन तीन एग्जाम्पल से हमें प्रूफ हो गया कि व्हाट इज़ द डेवलप कॉमन गोल. कॉमन गोल जो है वो क्या है? इनकम. इनकम इज मोस्ट कॉमन गोल. इनकम इज कॉमन गोल. इसके अलावा कॉमन गोल इनकम के अलावा हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है इट इज़ डिपेंड ऑन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल गोल्स. मटेरियल गोल्स मीन्स मनी and non-material goals means security, freedom, respect to others. Next topic is here, it's new topic, national development. What is national development? National development means social, economic and political development of a country is called a national development. It means reduction of poverty, political rights and no social discrimination in the society. It is called the national development. The next topic is here how to compare different countries. कि if अगर हमें बोला जाए कि आपको 2 countries में comparison करना है तो हम कैसे comparison करेंगे? First we compare in the income. We compare in income कि अगर हमें 2 countries में comparison करना है तो हम compare करेंगे income के अंदर. For example, अगर आपको क्लास में in your class 2 students में comparison करना है तो which criterion are used. अगर हमें 2 students में comparison करना है तो हम कैसे compare करेंगे? First we compare in the नॉलेज. उसका नॉलेज कैसा है, स्टडी वाइज कैसा है, स्टडी अच्छी करता है या नहीं करता, उसका जनरल नॉलेज कैसा है, उसकी हेल्थ, हाइट. इट मीन्स कि डिफरेंट क्राइटेरियन आर यूज टू कंपेयर बिटवीन 2 स्टूडेंट्स. हम 2 स्टूडेंट्स में कंपैरिजन करने के लिए बहुत सारे क्राइटेरियन यूज़ करेंगे. बट व्हेन वी कंपेयर इन द 2 कंट्रीज़, जब हमें 2 कंट्रीज़ के अंदर कंपैरिजन करना है तो हम सीधा जो है वो कंपेयर करते हैं इनकम. हम सीधा डिक्लेयर कर देते हैं कंट्रीज़ हुज इनकम इज़ हाई, इट इज़ कॉल्ड रिच कंट्रीज़, और कंट्रीज़ हुज इनकम इज़ लेस, इट इज़ कॉल्ड पुअर कंट्रीज़. अब क्वेश्चन यहाँ आता है कि व्हेन वी कंपेयर इन द कंट्रीज़ तो व्हाट इज़ द इनकम ऑफ द कंट्री. किसी भी कंट्री की इनकम क्या होगी? व्हाट इज़ द इनकम ऑफ द कंट्री? इट मीन्स ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ दिस कंट्री इज़ कॉल्ड द इनकम ऑफ द कंट्री. उस कंट्री में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनकी इनकम जो होगी वो क्या होगी? इनकम ऑफ द कंट्री. अब हाउ But income is not useful criterion to compare between the countries. But हम income के basis पर 2 countries में comparison नहीं कर सकते हैं because different countries have different population. क्योंकि हर country की population जो है वो क्या होगी? डिफरेंट होगी. जिस कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पर इनकम भी हायर होगी, जहाँ पॉपुलेशन लेस है वहाँ पर इनकम भी क्या होगी? लेस होगी. तो व्हेन वी कंपेयर बिटवीन द 2 कंट्रीज वे कंपेयर इन द पर कैपिटा इनकम. हम किस में कंपैरिजन करेंगे? पर कैपिटा इनकम. इट मीन्स पर पर्सन इनकम.
हर पर्सन की इनकम कितनी है उस कंट्रीज़ के अंदर, तो कैलकुलेशंस पर कैपिटा इनकम का हम लगाएंगे टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स population. It is called the per capita income. Per capita income is useful criterion to compare between the countries. But according to World Bank जो है उसने दो कंट्रीज़ में कंपैरिजन करने के लिए 2017 में US डॉलर डिक्लेयर किया है कि कंट्रीज़ हुज पर कैपिटा इनकम इज़ US डॉलर 12,056 per annum, it is called the rich countries, and countries whose per capita income is US dollar 955 per annum, it is called the poor countries. इंडिया जो है उसकी जो इनकम है it is US dollar 1,820 per annum, it is called middle low income countries. India comes in middle low income countries. यहाँ पर इट मीन्स, यहाँ पर कहने का मतलब है कि वैन वी कंपेयर इन द कंट्रीज़, जब हम किसी दो कंट्रीज़ में कंपैरिजन करते हैं तो वी हैव ए क्राइटेरियन, हमारे पास बहुत सारा क्राइटेरिया होना चाहिए. वैन वी कंपेयर इन द स्टूडेंट्स तो हमारे पास वहाँ पर भी बहुत सारा क्राइटेरिया है. और वैन वी कंपेयर इन द टू कंट्रीज़, फर्स्ट वी कंपेयर इन द इनकम, हम इनकम में कंपैरिजन करके बता देते हैं कि जिन कंट्रीज़ की इनकम ज़्यादा है वो रिच कंट्रीज़ हैं, कंट्रीज़ जिनकी इनकम जो है वो लेस है इट इज़ कॉल्ड ए पुअर कंट्रीज़. बट इनकम इज़ नॉट यूजफुल क्राइटेरियन टू कंपेयर बिटवीन द कंट्रीज़ बिकॉज डिफरेंट कंट्रीज़ हैव डिफरेंट पॉपुलेशन. हम इनकम में कंपैरिजन करके नहीं बता सकते क्योंकि हर कंट्री की पॉपुलेशन डिफरेंट है. जिस कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उसकी वो रिच कंट्रीज़ में डिक्लेयर की जाएगी और कंट्रीज़ जिसकी पॉपुलेशन लेस है इट इज़ कॉल्ड द पुअर कंट्रीज़. तो किसी भी कंट्री को कंपेयर करने के लिए हमें पर कैपिटा इनकम में कंपेयर करना चाहिए. तो यूजफुल क्राइटेरियन है पर कैपिटा इनकम. और हाउ टू कैलकुलेट द पर कैपिटा इनकम, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन. बट अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक जो है उसने डिक्लेयर किया है 2017 के अंदर US डॉलर पर एनम पर पर्सन इतना है तो इट इज़ कॉल्ड द रिच कंट्रीज़. और 955 है इट डिक्लेयर्स पुअर कंट्रीज़. और इंडिया कम्स इन मिडिल लो इनकम कंट्रीज़. Now the next topic is there. Income and इनकम एंड अदर क्राइटेरिया. अगर हम कंपैरिजन करते हैं व्हेन वी कंपेयर बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज, फर्स्ट वी कंपेयर इन द इनकम. बट इनकम के अलावा अदर क्राइटेरियन भी हमें यूज़ करने हैं. फॉर एग्जाम्पल IMR, infant mortality rate, net attendance ratio, literacy rate. When we compare between the different countries, we compare in the income and other criteria. It is called the IMR, net attendance ratio and literacy rate. हमें इन तीन में भी compare करना है कि IMR मतलब per 1000 children. It is compare on per 1000 children. Per 1000 children में कितने चिल्ड्रन जो हैं वो 1 ईयर एज कंप्लीटेड करने से बिफोर डाई हो गए. नेट अटेंडेंस रेशो, इट मीन्स कि कितने स्टूडेंट जो हैं वो 8th क्लास तक स्कूल अटेंड करते हैं. और लिटरेसी रेट.
For example, we will take the example of 3 states per capita income state. We will take Maharashtra, Punjab and Bihar. We will take the example of 3 states and per capita income. Maharashtra per capita income is 25,000, Punjab per capita income is 14,000 and Bihar per capita income is 12,000. When we compare in the per capita income, अगर हम per capita income में comparison करते हैं तो महाराष्ट्र की per capita income higher है, it is called rich. और बिहार इट्स पर कैपिटा इनकम इज बॉटम. यहाँ पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, बॉटम में है. दिस स्टेट इज डिक्लेयर पुअर स्टेट. बट it is not useful criterion to compare between the states. We compare in the states IMR, infant mortality rate, net attendance ratio and literacy rate. Thank you.